So, beta, as you know, we are doing chapter number 13 of your chemistry volume 2, hydrocarbons. And in this particular chapter, we are discussing about saturated class of hydrocarbons, alkanes. And we have already discussed about the preparation, method of preparation of alkanes, as well as the various chemical properties, that is chemical reactions that takes place in the alkanes. Today we will discuss the next topic of this particular type of hydrocarbon alkanes, that is conformations. Conformations, these are actually, you can say, the spatial arrangements, the spatial orientation of the different atoms present around the carbon atoms of alkane family, okay, of a particular alkane, of a particular hydrocarbon, you can say. As we already know, alkanes contains carbon-carbon single bond, that is sigma bond, and each carbon atom is sp3 hybridized in case of alkanes. So electron distribution of sigma molecular orbital remains symmetrical around the internuclear axis of the carbon-carbon bond in case of alkanes, and around which the particular rotation is possible. That is, the carbon-carbon bond is rotatable, you can say. Okay, if one of the carbon atom remains fixed and other carbon, we can rotate the other type of carbon atom, because of which the spatial arrangement of different atoms attached with that carbon atom gets changed. Okay, so these different orientations, you can say, in which the one type of particular arrangement gets changed into another, the spatial arrangement of the atoms gets changed into another, that is known as conformations. Okay, that is the you can say the geometrical arrangements, you can say, or the spatial arrangements that we obtain after the rotation of rotation around the carbon-carbon single bond, and these are also known as conformers और also rotamers भी इनको बोल दिया जाता है. तो एल्केन्स के केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस होती हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो रोटेटेबल होता है, ओरिएंटेट कर सकते हैं, मतलब एक कार्बन एटम को फिक्स रख के हम दूसरे को रोटेट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए ये आपके पास आपका एक कार्बन एटम हो गया, इसको हम ऊपर से रोटेट कर सकते हैं ऐसे करके, ये चीज, ठीक है. तो सेम एज इट इज ही जो एल्केन्स होते हैं वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो ओरिएंटेट कर सकता है अराउंड द अदर. तो उस वजह से फिर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाती हैं, और ये जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑब्टेन्ड हो रही है इनको कन्फर्मेशंस बोला जाता है, या फिर कन्फॉर्मर्स बोल सकते हो या रोटामर्स बोल सकते हो. ओके, लेकिन जो रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है, ऐसा भी नहीं होता कि कंप्लीटली वो फ्री होती है, हम जैसे मर्जी उसको रोटेट कर सके, ठीक है. तो एक्चुअली एक पर्टिकुलर एनर्जी कंडीशन चाहिए होती है, एनर्जी बैरियर होता है, 1 to 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो चाहिए होती है ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड्स, ठीक है. ये जो रिपल्सिव इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है इनको टोर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, टोर्शनल स्ट्रेन. जैसे मान लीजिए एक वायर है कोई, तो अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो वहां पे एक स्ट्रेस सी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वायर अपनी मेन पोजीशन पे वापस आने के लिए रेडी रहती है. बेशक वो कंप्लीटली नहीं आ पाती अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट जो है उसका वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है. तो ये जो रिपल्सिव इंटरेक्शन जो एग्जिस्ट करती है इसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं. हम लोग इस केस में, एल्केन्स के केस में, हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कन्फर्मेशन स्टडी करेंगे, दैट इज ऑफ इथेन ओनली, ठीक है. तो इथेन के केस में आपको पता है 2 कार्बन एटम्स आर देयर having 3 hydrogen atoms with each carbon atom. That is the chemical formula of the alkane is C2H6, which contain carbon carbon single bond, that is sigma bond, and each carbon atom attached with the 3 hydrogen atoms, that is total 6 carbon hydrogen bonds and 1 carbon carbon single bond is there. So by keeping 1 carbon atom stationary, we can rotate the other carbon atom around the carbon carbon sigma bond, and this rotation results into infinite number of special arrangement, as we already discussed, okay, with respect to the hydrogen atoms attached to the each carbon atom, and these are known as
conformational isomers which are obtained after particular type of rotation. Okay, so the two basic type of conformations that we discuss in case of ethanes are eclipsed conformation and staggered conformation. Eclipsed and staggered. The eclipsed conformation is such a conformation in which the hydrogen atom attached to the two carbon atoms are so close together as possible, as much as possible. Means to say, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में क्या होता है कि जब हम एक कार्बन एटम को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट करते हैं तो जो हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि दोनों कार्बन एटम के हाइड्रोजन एक तरह से अप्रोच ईच अदर, वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, मतलब दे फेस टुवर्ड्स ईच अदर. दोनों कार्बन एटम्स के जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो एक दूसरे की तरफ फेस रहेंगे उस केस में. तो ऐसी जो कंफर्मेशन हमारे पास ऑब्टेन्ड होती है उसको हम बोल देते हैं एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन. ओके. और दूसरी होती है आपके पास स्टैगर्ड कंफर्मेशन. स्टैगर्ड कंफर्मेशन होती है जहां पे जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और बोथ द कार्बन एटम आफ्टर पर्टिकुलर ओरिएंटेशन दे बिकम्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे अपीयर्स टू बी मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. वो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे से अवे जा रहे हैं. तो एक्लिप्स्ड में हो जाएगा आफ्टर रोटेशन दे अप्रोच ईच अदर, एक तरह से वो अप्रोचिंग में मूड में होंगे, एक दूसरे की तरफ फेसिंग होंगे. लेकिन स्टैगर्ड में वो अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वन, ये वाला केस. यहाँ पे आप देख सकते हो इस हाइड्रोजन एटम से इसको और इसको जब देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये होगी आपकी एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन. जबकि स्टैगर्ड में क्या होता है, ये अवे है, ये देखिए दिस वन एंड दिस वन, ये अवे फ्रॉम ईच अदर है. ठीक है, तो स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कंफर्मेशंस होती हैं ये. ठीक है, और इन ये दो एक्सट्रीम है बेटा, एक इनिशियल होगी, एक आफ्टर रोटेशन, जब कंप्लीट रोटेशन, जितना पॉसिबल रोटेशन हो सकती है उतना हम करके वो जो बाद में लास्ट में प्रोड्यूस होती है. तो ये दो एक्सट्रीम कंफर्मेशंस हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती हैं, एक एक्लिप्स्ड और दूसरी स्टैगर्ड. इसमें एक थर्ड आती है जो इंटरमीडिएट रहती है. इंटरमीडिएट इन द सेंस ना तो वहां पे हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीटली एक दूसरे को फेस करेंगे और ना ही एक दूसरे से अवे होंगे, और उसको बोलते हैं स्क्यू कंफर्मेशन. दैट इज नोन एज स्क्यू. जो थर्ड बनती है स्क्यू कंफर्मेशन, दैट इज इंटरमीडिएट. ये इंटरमीडिएट होती है. एनी अदर इंटरमीडिएट कंफर्मेशन दैट इज कॉल्ड स्क्यू कंफर्मेशन. ठीक है जी. तो टू एक्सट्रीम आपके पास होती हैं, कौन कौन सी, एक एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड. आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट कंफर्मेशंस ऑफ इथेन. ठीक है, इस तरह से. तो आपने स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड एंड स्क्यू, इन तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी होती है बेटू. ठीक है जी. तो ये है आपके पास कंफर्मेशंस ऑफ इथेन. इसको दो तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. ये जो आप देख रहे हो, जो फर्स्ट वाली हमने की है दिस वन, ये आपके पास साहॉर्स प्रोजेक्शन रहती है. साहॉर्स होता है हमारे पास, ठीक है, उसकी तरह दिखते हैं ये साहॉर्स. साहॉर्स जानते हो ना क्या होता है, तो एनिमल जिसको हम बोलते हैं, ये वो होता है आपके पास, तो उसकी तरह दिखती हैं ये. ओके, जो इनकी शेप होती है वो साहॉर्स की तरह होती है. ठीक है बेटा. और जो नेक्स्ट है आपके पास, जो नेक्स्ट मेथोडोलॉजी रहती है वो आपके पास होती है न्यूमैन प्रोजेक्शंस. पहली है साहॉर्स प्रोजेक्शंस एंड दूसरी न्यूमैन प्रोजेक्शंस. ठीक है जी. सॉबर्ग, टेस्टरबर्ग, ये सारी होती हैं इस तरह से, वो दिखाई देती हैं हम लोगों को साहॉर्स प्रोजेक्शंस. न्यूमैन प्रोजेक्शंस को न्यूमैन ने स्टडी किया था. इसमें हमारे पास जो मेनली आती हैं वो इस तरह की होती हैं. यहाँ पे हम एक जो साहॉर्स प्रोजेक्शन होती है इसमें दोनों कार्बन एटम विजिबल रहते हैं. ठीक है, आगे वाला जो फ्रंट वाला है ये फेसिंग टुवर्ड्स यू होता है और पीछे वाला ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है. वन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सेकंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. यहाँ पे दोनों विजिबल रहते हैं, हम दोनों प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर शो करते हैं. लेकिन जो न्यूमैन कंफर्मेशन होती है वहां पे हम एक ही कार्बन एटम विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर उसी को शो किया जाता है. जो पीछे होता है उसके सिर्फ हाइड्रोजन एटम शो होते हैं, जो कार्बन एटम होता है वो शो नहीं होता उस केस में, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे लाई करते हैं, जो न्यूमैन प्रोजेक्शंस होती है. ठीक है, हेड ऑन बोलते हैं इसको. तो इसमें एक्लिप्स्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम जस्ट एक दूसरे के पीछे रहेंगे बिल्कुल,
फर्स्ट कार्बन एटम का जो फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड द सेकंड विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, उन दोनों के हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो इस तरह से रहेंगे आगे पीछे, यू कैन से, ठीक है। और जो स्टैगर्ड होगी उनके बिल्कुल ऑपोजिट में आ जाएंगे, अलग अलग दिखाई देंगे, टॉर्शनल और डाइहेड्रल एंगल हो जाएगा वहां पे एक क्रिएट, ठीक है, 120 डिग्री के आसपास। ये रहती है आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन। जस्ट अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टेबिलिटी के केस में जो स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन की अगर हम बात करें, जैसे सॉहॉर्स की बात कर लें, कुछ भी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहां पे एज फार एज आप फार अपार्ट रहते हैं स्टैगर्ड के केस में, तो मिनिमम रिपल्शन इंटरेक्शंस होंगी उस केस में, मिनिमम एनर्जी होगी, अगर मिनिमम एनर्जी है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपके पास स्टैगर्ड है, तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स जो रहते हैं, दोनों कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम ये अवे फ्रॉम ईच अदर रहते हैं, अवे, तो उस वजह से वहां पे रिपल्शंस, जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, वो मिनिमम रहेंगी क्योंकि दूर दूर है, तो उस वजह से जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, एंड एनर्जी लीड्स टू स्टेबिलिटी, लोअर द एनर्जी हायर विल बी द स्टेबिलिटी। तो स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ जो रहती है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन फॉर्म जो रहती है, वो ज्यादा स्टेबल रहती है एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड, क्योंकि एक्लिप्स्ड में हाइड्रोजन एटम फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शंस ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है, रिपल्शंस ज्यादा होने से वहां पे स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है उस केस में। तो इस तरह से आप लोग एनर्जेटिक्स ऑफ कंफर्मेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। So minimum energy on the other hand, when the staggered form changes into the collapsed form, the electron clouds of carbon hydrogen bond come closer to each other, जैसे कि मैंने अभी बताया ये, resulting in increase of electron cloud repulsions, ठीक है। To check the increased repulsive order, molecules will have to possess more energy and thus has lesser stability. So you can say the repulsive interactions which affects the stability of conformation, that is called torsional strain इसको बोला जाता है, और जो magnitude रहता है इस केस में, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन जो रहती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, और ये जो एंगल रहता है इसको डाइहेड्रल एंगल बोला जाता है या टॉर्शनल एंगल बोल दिया जाता है। क्लियर? जितनी भी कंफर्मेशंस बनती हैं जो स्टैगर्ड रहती है, स्टैगर्ड फॉर्म रहती है, जो हैज द लीस्ट, आप कह सकते हो कि टॉर्शनल स्ट्रेन होती है, एंड द क्लिप्स्ड फॉर्म हैज द मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, दिस ऑल ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन that takes place between the electron clouds of carbon hydrogen bonds. Okay बेटा, so difference between the two जो रहती है यहाँ पे, the difference between two extreme forms वो रहता है आपके पास 12.5 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स के ऊपर इथेन मॉलिक्यूल थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट दे इफेक्ट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी बैरियर 12.5 किलो जूल, ठीक है, थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स। सो दस आप कह सकते हो कि द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन इथेन इज ऑलमोस्ट फ्री रहती है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए वो रोटेशन के लिए, जो चाहिए वो 12.5 किलो जूल के आसपास चाहिए, जो इजीली अवेलेबल हो जाती है व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट रेडिएशंस। ओके, सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स। In this particular topic, you have to learn about the nomenclature of alkanes that we have already discussed in the chapter number 12. The most important one is methods of preparation, that is reactions. The methods by with the help of which we can obtain the alkanes. And the second, the most important, that is chemical properties, that is the chemical reactions that takes place in case of alkanes. And the third one is conformations. This is one of the important topic, conformation. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, draw the conformation या state and explain the conformation possible, all the possible conformations of इथेन। तो इथेन की ही आपके सिलेबस में आपने यही अच्छी तरह से इनको लर्न करना है। तो ये सारा टॉपिक एक बार दोबारा से आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है, ठीक है, इजी सा टॉपिक है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाला नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, दैट विल बी, वी विल स्टार्ट अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और उनमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एल्कीन्स के बारे में, ठीक है, द सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स
that is unsaturated hydrocarbons, that is alkenes and alkynes. तो हम पहले alkenes के बारे में अपने next lecture में study करेंगे. तो till then revise whole these topics that we have already covered thoroughly. Okay beta, take care, bye bye.